السلام علیکم ناظرین، منصف ٹی وی کی نیوز بلیٹن منصف کشمیر میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد حسام الدین۔ سب سے پہلے پیش ہے منصف کشمیر کی ہیڈ لائنز۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں وادی کشمیر میں تیاریاں ہیں عروج پر۔ شوپیان میں بھی ہوئی ضلع سطح کی ایک میٹنگ منعقد۔ گاندربل میں نیشنل کانفرنس کے ورکروں کی ایک میٹنگ ہوئی منعقد۔ حالیہ کامیاب ہوئے امیدوار محمد جبار نے لوگوں کا ادا کیا شکریہ۔ اور معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کو کیا جائے ختم۔ جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر کے ذمہ داران کی پریس کانفرنس میں عوام سے اپیل۔ اور پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ضلع شوپیان میں ضلع ترقیاتی کمشنر بشیر احمد بٹ کی صدارت میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ضلع افسران کی ایک میٹنگ کی صدارت کی گئی، جس میں تمام افسران پر زور دیا گیا کہ وہ بجلی، پانی اور دیگر اہم ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دن کے حوالے سے انتظامات مکمل کر لیں۔ uninterrupted agriculture of supply. نیشنل کانفرنس کی جانب سے گاندربل میں ایک ورکرز کی میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں حال ہی میں کامیاب ہونے والے محمد جبار نے ورکرز پر زور دیا کہ وہ پارٹی کو مزید مستحکم بنانے کے لیے ہر سطح پر کام کریں تاکہ پارٹی تمام چیلنجز کا مقابلہ کر سکے۔ یوتھ پریزیڈنٹ پورا خیال اللہ تعالیٰ مگر نوجوانن یوت خاطر توتہ لگمت لکس ژور لڑکس ژور تک گھس دستخط آسن شیخ صاحب ون ہسا گھس آسن الگ عمر صاحب دپن ہے تیل کیا کر ناظرین، جموں کشمیر میں حالیہ انتخابات کے نتائج کے بعد جو کچھ صورتحال ہے اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں ہمارے نمائندے شبنم فیاض سے، جو اس وقت جموں کشمیر سے فون لائن پر ہمارے ساتھ جڑے ہیں کہ کیا کچھ وہاں پر اس وقت صورتحال ہے۔ جی شبنم، میں بتائیے کہ انتخابی نتائج کے بعد جس طریقے سے معلق اسمبلی اس وقت نظر آ رہی ہے، کیا یہ صدر راج کی طرف ہی چلے جا سکتا ہے یا کسی دو پارٹیوں میں اب اتحاد کی شکل نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے، ریاست جموں کشمیر میں یہ جو انتخابات ہوئے 5 مرحلوں میں ہوئے، اس کے بعد جو نتائج سامنے آئے اس سے پہلے لگ رہا تھا کہ پی ڈی پی ایک بڑی اکثریت سے جیتنے والی پارٹی سامنے آئی ہے۔ بہت ساری نشستیں اس کے پاس ہے، 28 نشستیں اس کے پاس ہیں، اور بی جے پی کو 25 ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کانگریس یا آزاد امیدواروں کے پاس بھی نشستیں ہیں۔ تو لگ رہا تھا کہ سرکار جو ہے بڑی آسانی سے بنے گی، لیکن کچھ ایسے معاملات سامنے آئے کہ کسی کے پاس اس طرح کا نمبر نہیں آیا کہ وہ سرکار بنائے، کیونکہ مرکز میں جو بی جے پی کی سرکار ہے، اگر انہیں بھرپور سپورٹ یہاں سے ملتا اور وادی کشمیر سے بھی ان کو کچھ نشستیں ملتی، شاید وہ سرکار بنا لیتے۔ لیکن پی ڈی پی کا مسئلہ اب یہ بن گیا ہے کہ 28 نمبران ہونے کے باوجود سب سے بڑی زیادہ پریشان اگر کوئی پارٹی ہے تو وہ صرف پی ڈی پی ہے، کیونکہ اس کو جو مینڈیٹ ملا ہے یہاں ریاستی عوام کی جانب سے، تو اگر وہ بی جے پی کے ساتھ جاتے ہیں، جو انہوں نے کہا بھی کہ ان کے ساتھ غیر رسمی بات چیت بالکل جاری ہے، اور ظاہر سی بات ہے ان دونوں پارٹیوں کے درمیان جو بات چیت ہے وہ جاری ہے، لیکن اس کا خمیازہ بھی شاید اسے بھگتنا پڑے گا، کیونکہ وادی کشمیر میں جو ووٹ انہیں ملا ہے وہ اس وقت ملا جب انہوں نے کہا کہ مشن 44 کو ہمیں روکنا ہے، اور مشن 44 کو روکنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ اپنے آپ کو بی جے پی سے ملا کر مشن 50+ بنا دے تو شاید اس کے لیے زبردست بالکل صحیح کہا کہ آگے چل کے ان کے لیے وہاں پر یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں نیشنل کانفرنس کی تو
जैसा कि तहरीर में उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी के जिम्मेदारान से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल वहां से उन्हें शायद कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद ऐसा महसूस होता है कि वो खुद भी पीडीपी से हाथ मिलाने के लिए कोशिश नजर आ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारगुजार सदर जो है वजीर आला जो रहे हैं या कारगुजार हम उसे भी कहेंगे, तो उन्होंने बिल्कुल पहले ये बातें सामने आई थी कि उनकी जो बातचीत वो बीजेपी से हुई है और शायद वो उनके साथ सरकार बनाएंगे। लेकिन जब उनकी पार्टी के अंदर कुछ रिएक्शन ऐसा मिला, कुछ एमएलए उनके मतलब उस फैसले से नाराज दिखाई दिए, तो उन्हें लगा कि शायद पार्टी में ये एक फूट डाल सकती है, ये डिसीजन जो है फूट डाल सकता है। तो उन्होंने बिल्कुल फरार इख्तियार की और कहा कि नहीं, हम नहीं बना रहे, ना हमने कभी बात की अमित शाह से न किसी और से। तो उन्होंने साथ ही कहा कि मैं पीडीपी को बिना शर्त ये जो सपोर्ट देने के लिए तैयार हूं और अनकंडीशनल जिसे हम कहेंगे वो उन्होंने बात सामने रखी। उसके साथ साथ अगर कांग्रेस की बात करें, वो भी कह रही है कि सेकुलर ताकतों को रियासत जम्मू कश्मीर में सरकार बनानी चाहिए। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जो है सीपीआईएम के, उन्होंने भी यही कहा है। और इंजीनियर रशीद की बात करें, सेकुलर ताकतें जो भी है वो बना सकती हैं सरकार, लेकिन उस तरह का रेस्पॉन्स उन्हें शायद पीडीपी से नहीं मिल रहा है कि, और पीडीपी ये जानती है कि मरकज में इस वक्त यूपीए की सरकार नहीं है और सारे मामला को इस वक्त वो देख रहे हैं। लेकिन जो भी हो, तो ऐसा लग रहा है कि पीडीपी सबसे ज्यादा मुश्किलात में है इस वक्त। जी शबनम, जहां तक अगर हम इलेक्शन से पहले की बात करें तो जिस तरीके से बीजेपी ने मिशन 44 का एक समझिए कि ऐलान किया था, बहरहाल उसमें वो कामयाब नहीं हुए, लेकिन अब जहां तक वो गठजोड़ की सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं और दीगर रियासतों में उन्होंने बनाई है, और फिर अगर हम उनकी मरकज की सरकार के वहां पर रहते हुए वो बहरहाल क्या ऐसा महसूस होता है कि वहां के जो गवर्नर हैं वो भारतीय जनता पार्टी को पहले हुकूमत बनाने की दावत देंगे या फिर पीडीपी को वो पहले दावत दे सकते हैं? बिल्कुल, गवर्नर एन एन वोहरा जो है रियासत के, तो उन्होंने दोनों पार्टियों के जो सदूर हैं, चाहे पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती जी हों या जुगल किशोर हों, इनके बीजेपी के सदर, दोनों को उन्होंने दावत दी है और उनको मिलने का वक्त दिया है। और ऐसा लग रहा है कि दोनों पार्टियों के जो सदूर हैं शायद वो कुछ वक्त लें, और शायद जो उन्होंने बिल्कुल जो नईम अख्तर है इनके तर्जुमान है पीडीपी के, उन्होंने आज भी ये बात मान ली कि बीजेपी के साथ उनकी जो बातचीत है वो चल रही है, और अगर उन दोनों का आपस में कुछ मेल हो रहा है तो उसके बाद शायद वो उनको आगाह करेंगे गवर्नर को कि हम दोनों ही सरकार बनाएंगे। लेकिन पीडीपी बिल्कुल सोच रही है कि अगर ये डिसीजन उन्होंने लिया तो इसके नताइज क्या निकलेंगे, इसके क्या मुहरकात होंगे। तो इस सारी चीजों को देख के ही कदम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा रही है। लेकिन जिस तरह वो कह रहे हैं कि बातचीत उनसे चल रही है, उस तरह वो कह रहे हैं कि दीगर पार्टियां चाहे कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, तो उनकी जानिब से उस तरह का मतलब ये बात सामने नहीं आ रही है कि बातचीत चल रही है। तो लेकिन ऐसा लग रहा है कि पीडीपी और बीजेपी जो है उन दोनों के दरमियान कोई बातचीत चल रही है और शायद नतीजा खेज भी साबित हो। जी शबनम, एक और सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर की अवाम ने किसी एक को मुकम्मल मैंडेट नहीं दिया है? क्या वजह है कि क्या वो इन जो जमातें हैं इन पर मुकम्मल एतमाद नहीं करती हैं वहाँ की अवाम? देखिए, रियासत जम्मू कश्मीर एक हसास रियासत है और इस हसास रियासत के अलग अलग जो अलग अलग सोच है, अलग अलग खत्ते में अलग अलग लोग रहते हैं। आप लद्दाख की बात करें तो वहाँ बौद्ध मजहब के लोग रहते हैं। आप जम्मू की बात करें, वहाँ अक्सरियत अगर है तो वो हिंदुओं की है। अगर आप कश्मीर की बात करें तो ये मुस्लिम अक्सरियती इलाका है। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, 3 इलाकों के 3 रीजनल्स के जो लोग हैं वो 3 मज़ाहिब से वाबस्ता है, और हर वक्त यहाँ पे एक ये तरीका भी इनको समझाया गया है कि हिंदू जो लोग होते हैं, जो मुख्तलिफ पार्टियों के लोग हैं, तो वो उस तरह का वोट बैंक हासिल करने की कोशिश करते हैं जब इंतखाबात होते हैं। और जब मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं तो वो मुस्लिम अक्सरियती लोगों की बातें करते हैं। वोट की तो जाहिर सी बात है वो करेंगे। अब जब वोट मिलेगा वो भी उसी तरह मिलेगा उन्हें। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जी शबनम, एक आखिरी सवाल कि ऐसे में जो आजाद उम्मीदवार हैं ये 6 या 7, वो समझिए कि उनका पलड़ा किस तरफ झुकाई दे रहा है? देखिए, अभी तक कुछ लोगों की बात सामने आई। अगर आप सज्जाद बिन लोन की बात करें तो उन्होंने बीजेपी का ही वैसे हाथ थामा है, क्योंकि वैसे तो उन्होंने अभी इजहार इसका नहीं किया। लेकिन जिस तरह पहले उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से बात की तो लग रहा है कि शायद वो उनको सपोर्ट दे। लेकिन अगर इंजीनियर रशीद की बात करें, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी मिलकर सरकार बनाए, हम सपोर्ट देने के लिए तैयार है। इसी तरह अगर सीपीआईएम की बात करें, उन्होंने कल वाज़ह तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि ये बीजेपी को रोकना नहीं है बल्कि ये आरएसएस को रोकना है। तो जाहिर सी बात है, यह तो पलटाबारी है सेकुलर ताकतों के लिए। लेकिन अगर बीजेपी और पीडीपी का बनता है तो उनको किसी आजाद उम्मीदवार की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
जी बहुत शुक्रिया शबनम, इन मालूमात को हम तक पहुंचाने का। नाज़रीन, ये हमारे नुमाइंदे शबनम फैयाज से जो जम्मू कश्मीर से हालिया इंतखाबी नताइज के बाद जो सूरत हाल इस पर हमें अपडेट दे रहे थे। बहरहाल अभी इंतजार करना होगा कि गवर्नर की दावत पर पहले कौन जाते हैं और वहां पर हुकूमत बनाने का दावा पहले कौन पेश करते हैं। बहरहाल इन पार्टियों में अभी गठजोड़ के लिए बातचीत जारी है। श्रीनगर में जमीयत अहले हदीस की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें जमीयत के जिम्मेदारान ने माशरे में फैली बुराइयों को दूर करने की बातों पर जोर दिया ताकि बेहतर माशरे को यकीनी बनाया जा सके। ये बात काबिल जिक्र है कि कई एक मकामात पर लड़कियों पर हाल ही में एसिड फेंका गया, जबकि कई एक का अगवा भी हुआ है। 1% जमा करने के आज़म को सराहते हैं, जबकि ज्यादा से ज्यादा मकदार के लिए कोई हद मुकर्रर नहीं है। मैं एक दफा फिर इंसानी हुकूक की बाज़दारी, ट्रांसवर्ल्ड मुस्लिम यूनिवर्सिटी बिल की क्लियरेंस और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और मंशियात व ड्रग्स के खात्मे की तरफ तवज्जो मबज़ूल करने की दावत देता हूँ। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की जानिब से हरगली शोपियान में एक और ज़ियारतगाह को अपनी तहवील में ले लिया गया। इस दौरान आस्ताने आलिया की नई तामीर की गई, जबकि वक्फ बोर्ड के सदर MY खादरी ने कहा कि वक्फ बोर्ड की कोशिश होगी कि किसी जगह पर एक सराय भी कायम की जाए ताकि अक़ीदतमंदों को यहाँ पर किसी तरह की मुश्किलात का सामना न हो। रुत बनो, असल बनो, ये बन मुसाफिर खाना, ये बन रोज गनाश, ये रोज ये पहाड़ ये सराय बन क्या पहाड़। हज़रत अमीर कबीर मीर सैदी हमदानी जब यहाँ से तशरीफ लाए थे, उनके साथ मुलाकात हुई, जब उनको उनका मसलक इख्तियार करके मुसलमान बन गए, तो उसके बाद यहाँ जो जियारत बनी है काफ़ी इम्पोर्टेंट जियारत है इस इलाके में। तो हमने इसको टेक ओवर किया है रिसेंटली, और इसको हमने बनाने के लिए, क्योंकि पिलग्रिमेज टूरिज्म एक नया रास्ता खुल रहा है, यहाँ से काफ़ी स्कोप है इसको डेवलप करने के। इसमें ऑलरेडी हमने एक प्रोग्राम बनाया है, इसमें अभी छत हमने तब्दील करी है, पूरा इसमें एक नक्शा बनाया है, जिसमें इसके साथ साथ यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसमें पिलग्रिमेज टूरिज्म के लिए जो भाई तो ज़ायरीन बनेगा, जो भी ज़ायरीन दूर दराज से इलाकों से आए वो यहाँ रहने के काबिल हों। उसके बाद उसके साथ यहाँ ज़रूरत है एक बाथरूम्स की एक फैसिलिटी काफ़ी अच्छी हो, एक मस्जिद की ज़रूरत है। उसके साथ हल्के डोडा से कांग्रेस उम्मीदवार और रियासती वजीर अब्दुल मजीद वानी की जानिब से हालिया इंतखाबात में शिकस्त के बाद आए जराए दहिंदगान का शुक्रिया अदा करने के लिए मुनक़्क़द जलसे से खिताब करते हुए तामीरात आम्मा के वजीर अब्दुल मजीद ने कहा कि अगर वो हुकूमत का हिस्सा न भी होंगे तो मजबूत हिज़्ब इख्तिलाफ का रोल अदा करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि डोडा में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अवाम को गुमराह किया और बीजेपी ने फिरकापरस्ती का जहर घोलकर अवाम को गुमराह किया है, और नताइज आने के बाद ही चंद रोज बाद अब राय दहिंदगान को इस बात का एहसास हो गया है कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में जीत और हार सियासत का हिस्सा है और वो यहाँ की तामीर और तरक्की के लिए अब भी दियानतदारी के साथ अपना किरदार अदा करेंगे। कि कौन जीतता है सवाल उसका नहीं है, जीतना एक इंसान की अपनी मुकद्दर है, लेकिन जो इस सनामी में या ऐसे हवा में जो नुकसानात हुए उनका डर कितना है। शाहगंज कोलगाम में इस वक्त खौफ हरास फैल गया जब कई रीच इलाके में नमूदार हुए। इस दौरान लोगों ने इल्जाम लगाया कि महकमे वाइल्ड लाइफ इन रीचों को काबू करने में नाकाम रहा, जबकि आम लोगों में सख्त खौफ पाया जा रहा है। साढ़े 8 बजे लगभग मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई, एक लड़का यहाँ से गुजर गया, उसने देखा कि यहाँ पर 2-3 बालू है, तो उसने मुझे मैसेज किया यहाँ पर आओ, आपके यहाँ जमीन में 2-3 बालू है। अगर PDP कश्मीर के लोगों की खैर ख्वाह है तो उनको चाहिए कि वो बिना सोचे समझे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्ट को तस्लीम करें। बीजेपी जम्मू कश्मीर में नफरत की सियासत कर रही है, इसलिए PDP को चाहिए कि वो बीजेपी को जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाने से दूर रखे। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और हालिया इंतखाबात में हल्का होमी शाली भग से फतेह याफ्ता उम्मीदवार अब्दुल मजीद भट्ट लारमी की KBC से बात करते हुए कहा है। जो सपोर्ट है कबूल करना चाहिए। तो रहा सवाल हमारा बीजेपी को सपोर्ट करने का, वो तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे कायद जनाब उमर साहब ने इससे पहले भी कहा कि बीजेपी के साथ अगर खुदा न खास्ता कभी हो सकता है, पहले नरेंद्र मोदी गुजरात में जो दंगे हो गए उसके लिए माफी मांगे और अफस्पा को यहां से हटाए, 370 के साथ कोई छेड़खानी ना हो, और जो 6 पॉइंट प्रोग्राम हमने दिया है उसको मान ले, तो उसके बाद हम
हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शब्बीर अहमद शाह की वालिदा की वफात पर हुर्रियत के बेशतर लीडरों के साथ साथ कई अहम पार्टियों के लीडरों ने भी शब्बीर शाह के घर जाकर उनके साथ ताज़ियत की। इस मौके पर कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स के साथ साथ बहुत सारे दीनी उलमा ने भी शब्बीर शाह के घर जाकर ताज़ियत की। इस मौके पर हुर्रियत के सीनियर लीडर नईम अहमद खान ने शब्बीर शाह की वालिदा को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि मरहुमा एक नेक खातून थी और उन्होंने कश्मीर की तहरीक के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। शब्बीर अहमद शाह साहब की वालिदा थी, उनका इस तहरीक आज़ादी में अगर रोल देखा जाए, उस पर बात की जाए तो सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। क्योंकि शब्बीर अहमद शाह साहब उनके फर्जंद थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उनको घर में नहीं पाया। शब्बीर अहमद शाह साहब ने जिंदगी फौज की 13RR ने आज उजास बांदीपुरा के हायर सेकेंडरी स्कूल में एक फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया, जिसमें इलाके से ताल्लुक रखने वाले मर्दजन के अलावा छोटे बच्चों ने भी इलाज करवाकर मुफ्त दवाएं हासिल की। इस मौके पर लोगों ने फौज के इस इक़दाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उजास बांदीपुरा के इलाके में तिब्बी सहूलियात की कमी की वजह से यहाँ ऐसे कैंप लगाने से लोगों को राहत महसूस हुई है। बीजेपी से वाबस्ता हिना भट्ट ने फिर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह हालिया इंतखाबात में रियासत भर में कामयाबी हासिल की, इससे साफ जाहिर होता है कि रियासती अवाम बीजेपी की सरकार को रियासत में देखना चाहती है। कश्मीर उनके नजर में है, तो जो दावे आज तक पार्टियां करती आई हैं, हमारा उससे मुद्दा अलग है। एक तो खुद भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में है और साथ में नरेंद्र मोदी जी का साथ है। इस बार जो भी हमारी सरकार बनेगी या जो भी, और नाज़रीन आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में वादी कश्मीर में तैयारियां हैं उच्च पर। शोपियान में भी हुई जिला सतह की एक मीटिंग मुनक्कद। गांधीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों की एक मीटिंग हुई मुनक्किद। हालिया कामयाब हुए उम्मीदवार मोहम्मद जब्बार ने लोगों का अदा किया शुक्रिया। और माशरे में फैली हुई बुराइयों को खत्म किया जाए, जमीयत अहले हदीस जम्मू कश्मीर के ज़िम्मेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवाम से अपील। और नाज़रीन इसी के साथ मुनसिफ कश्मीर खत्म होता है। मुनसिफ टीवी पर खबरों और दीगर प्रोग्रामों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहें। फिलहाल मुझे मोहम्मद हुसैन को दें इजाजत।